Hello students, welcome all. I am back with the remaining part of my video. Just keep patience to see the video till end. At the end of the video, I have added some simpler question for you to solve. Before start the chapter, have a quick recap, concentrate and have fun learning with me. The Eyes Have It by Ruskin Bond is a story about the narrator's memorable meeting with a fellow traveler. He had a reservation till Rohana. The narrator was blind and was sitting in his compartment of train. Then a girl stepped up into it. She was being instructed by her parents about the cautions she should take while her journey. To the train. The narrator and the fellow traveler indulge into a formal introduction. The narrator was already influenced by the girl's soft voice. They had a talk about the weather of hills in the month of October, about dahlias, about deserted streets, and enjoy fire logs, etc. The narrator wanted to hide his blindness from the girl, but he made a mistake while asking her about the outside scenery, but the girl did not find anything strange in this question. Now continue from the page number 2, last paragraph. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubt. Why don't you look out of the window? She asked. Means she was not sure about the matlab she don't know about his blindness, about the narrator's blindness. These questions remove the narrator's doubt, है ना, remove narrator's doubt about his blindness. Now next paragraph. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense. Pretense means a false show. मतलब मैं दिखा रहा था झूठ झूठ का, है ना, of studying the landscape. Landscape मतलब जो बाहर का नज़ारा, मैं उसे दिखा रहा था ऐसा कि मैं सब पढ़ रहा हूँ, है ना. मैंने अपना चेहरा उधर कर लिया और मैंने सब कुछ, है ना, विंडो की तरफ देखना शुरू किया और ऐसा उसको दिखा रहा था कि मैं सब देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see the telegraph post flashing by. मतलब वो जो इंजन की पैंटिंग की आवाज़, मतलब जो छुक छुक की आवाज़ थी वो सुन रहे थे, है ना. और अ कंटिन्यूस डीप रंबल मीन्स होता है ए कंटिन्यूस डीप साउंड ऑफ व्हील्स, मतलब छुक 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 की आवाज़ जो हो रही थी ना, उसकी आवाज़ सुन रहा था, है ना. और उसके अपने मन की आंखों से वो सब ये सब सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे. और आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय. टेलीग्राफ पोस्ट मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर वहाँ पर वो भी समझ में आ रहा था कि यहाँ से जो है कैसे फ्लैश कर रहा है हर चीज़ ना, कि वो मतलब रोशनी जो फ्लैश हो रही थी, है ना. तो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर, दैट द ट्री सीम्स टू मूविंग वाइल वी सीम्स टू बी स्टैंडिंग स्टिल. मतलब वो अब उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा है कि उसको ज़रा भी इस चीज़ का एहसास ना हो, गर्ल को एहसास ना हो कि वो ब्लाइंड है. तो क्या कह रहा है, देखो कैसा लग रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्टिल खड़े हुए हैं और
जो पेड़ पौधे वो आगे चल रहे हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, डू यू सी एनी एनिमल्स? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पर कोई एनिमल्स मुश्किल से ही होंगे, एक आधा, तो उन्होंने जो है कॉन्फिडेंटली कहते नहीं नहीं, मुझे कोई एनिमल्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस। ठीक है, चुपचाप वो थोड़ी देर बैठे रहे दोनों। You have an interesting face, I remarked. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh, मतलब बहुत तेज़ इसकी आवाज़ हंसने की, है ना, सुनाई दे रही थी मुझे। मैंने उसको बोला, You have an interesting face, मतलब आपका बहुत इंटरेस्टिंग फेस है, मतलब इंटरेस्टिंग मतलब क्या कहते हैं, अच्छा कह सकते हो, या मतलब एक मतलब आपको पढ़ने का मन करे, लाइक मतलब कैसे कहें कि आपके फेस में एक अलग सी बात है जो अच्छी है ना, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट जगाती है, लोगों आपसे बात करने का मन करता है इस तरह से। मतलब वो कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश, वो ब्यूटीफुल नहीं कह सकता था उसको, क्यों? बिकॉज ब्यूटीफुल कहता, पता नहीं ना होती ब्यूटीफुल, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है, नरेटर इज़ ब्लाइंड, तो हाउ कैन ही बी सो श्योर कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल? वो उसको ब्यूटीफुल नहीं कह सकता था, और मान लो ब्यूटीफुल ना होती तो उसको समझ आ जाता, या तो उसको लगता कि वो उसको क्या कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है ना, उसको मतलब उसकी हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, और या तो फिर उसको ये लगता कि कैसे ये अंधा है क्या, मुझे ऐसे कैसे कह रहा है ना। तो इस वजह से वो इन क्या नाम है, उससे बचने के लिए, इन डाउट से, इन क्या कहते हैं, सस्पेक्ट से बचने के लिए वो कहता है, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, इट्स नाइस टू बी told have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. मतलब अब उसको बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप मुझे इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर मुझे प्रिटी फेस कहते हैं। इट्स Oh, so you do have a pretty face, I thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be a pretty. Can also be pretty. मतलब हाँ हाँ, मतलब अब वो अपनी बात को बनाने के लिए कैसे कह रहे हैं कि हाँ हाँ इंटरेस्ट, मतलब ठीक है, तुम क्या कहते हैं, हाँ इंटरेस्टिंग फेस भी प्रिटी हो सकता है, मतलब अपनी बात को बनाने के लिए, है ना। ठीक है, लोग उसको प्रिटी कहते थे तो उसने कह दिया इस चीज़ के लिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप, अच्छा ठीक है, प्रिटी हो सकती हैं आप, है ना, हैं आप प्रिटी, सॉरी हो सकती नहीं, आप हैं प्रिटी, और इंटरेस्टिंग फेस भी प्रिटी हो सकता है। हाँ, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट वाई आर you so serious? I thought then I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. ठीक है, कह रही कि आई थॉट, मतलब यू आर अ वेरी गैलेंट, गैलेंट मीन्स चार्मिंगली अटेंटिव, मतलब आप बहुत ही, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, वैसे तो गैलेंट मीन्स ब्रेव होता है, यहाँ पर है चार्मिंगली अटेंटिव, मतलब आप बहुत अटेंटिव हैं, आप हर चीज़ को बहुत ही ऑब्जर्व करने वाले हैं, है ना, हर चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है, तो बट वाई आर सो सीरियस, तुम इतना सीरियस क्यों रहते हो? आई थॉट, है ना, देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, मैंने सोचा कि मैं उसके लिए हंसूँ, बट थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, मुझे लगा कि मैं अगर हंसूँगा तो इससे कुछ गलत हो सकता है, एक मैं अकेला भी हो सकता हूँ, फिर मैंने हंसना ज़रूरी नहीं समझा। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। ठीक है, तो थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बेयर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, है ना। तो नरेटर ने उसे बताया कि हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं, आपका स्टेशन आने वाला है। तो शी वॉज़ वेरी थैंकफुल टू गॉड, वाई, बिकॉज शी इज़ नॉट इनहेबिटेड टू have a journey, have a long journey in trains sitting on a one place. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of mountain stream. As soon as she let
left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. Now, the narrator was he was very impressed by the soft voice, so he said कि he want to sit there for any length of time, मतलब वो बहुत समय तक वहाँ उसके साथ बैठा रह सकता है. Before I end up the video, I would like to ask some simple questions from you. Just give their answers and note them in your copy. This is all for today. We'll meet again in my next video. Keep watching and keep learning. Best of luck. Thanks for watching.